See, I'll take you to ground zero. I'll show you the when this fire incident took place, how the people were rushing for life. These are the articles that they have left while running for cover line, running for their life. You see multiple shoes. This is a slippery area. They were rushing from this top towards that very bowl. It's a very tricky track where this incident has taken place, and you can see the kind of situation that these people have gone through when this terror incident had taken place. I'll ask my VJ Mubashir to show you the visuals of this very entry point where this incident has taken place. You can see the group of horses. This is the usually the ponies that are used for the movement. People walk on, or they use pony backs. Use it to transport, for the transportation or for the evacuation of the injured ones. So you see deployment of the joint forces here, the mud, the slug that is all around, and the articles that these victims or those who have been injured have left here. It only tells you about the story of the gruesome attack and the kind of horrific incident that was reported from here in Baisaran. The Baisaran, same place, same park where this incident had taken place. In fact, they have tried to get this motorbike also here, though it takes a lot of time, and seeing the cover of the mud all around, it is a cumbersome journey for anyone. The security forces have covered this very park. They are not allowing people to go inside, but I can show you the visuals from here, the kind of deployment that is come from J&K police and the CRPF. This is the exact spot. ये वही इलाका है, वही स्पॉट है जहाँ पर कल ये इंसिडेंट हुआ, जिसमें करीब 26 के आसपास का जो टोल है, जो यात्री जो है जिनकी डेथ हुई, और साथ साथ जो करीब 17 लोग हैं जो इसमें इंजर्ड है. ये वो कैफेटेरिया है. यहाँ पर कई लोग जो थे अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग अपना कैंपिंग कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ ट्रैकिंग भी कर रहे थे. और मैं विजय मुबशर को कहूँगी कि वो उस फॉरेस्ट रिज जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी रिज से जो है टेररिस्ट ने एंट्री की थी इस वाले बोल में. पहले लगा कि शायद पटाखे जल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब गोलियों की आवाज़ बढ़ती रही तो पता चला कि टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है. इसी साइड से जो है टेररिस्ट आए थे, जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी. हालांकि अभी यहाँ स्थानीय लोग हैं जो बात करने की स्थिति में नहीं है. इज अ बिग क्वेश्चन फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज दैट व्हेन द इंसिडेंट took place there was no deployment, but now we see since this incident there is a multiple layer deployment coming from the J&K police to CRP, SSB, ITBP. All the agencies have chipped in, although there have been the forensic teams also on the ground who tried to get the, some details, or to get the certain items or some articles they have picked up from this place for their investigation. That we will see that more and more layers of will surface in the coming time, as NIA is also investigating, the state CID is investigating. In fact, the forces from north have chipped in south, those who have expertise as far as dealing with such kind of terror incidents is concerned. So this is the bowl, this is a forest ridge where you see the kind of atmosphere at present. This is Baisaran. This is the picnic spot where this incident has taken place. और बिल्कुल ये जो बोल आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं. बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है. एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पे खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले. तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है. और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी. उसके बाद लोगों को अलग करके कई लोगों को पूछा गया कि इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम, तो अगर आप मुस्लिम है तो कलिमा पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई. अभी जो है इस बोल का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. कई चीज़ें हैं, कई सैंपल्स जो है फॉरेंसिक टीम्स ने अभी उठाए हैं. हालांकि CRPF J&K पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही है ताकि क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो. लेकिन जहाँ तक इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, कल करीब 70 लोग जो थे
वो यहाँ प्रेजेंट थे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि ये टेररिस्ट इस तरह के ग्रासलैंड से, इस तरह के रिज से अंदर कैसे आए। जहाँ आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, कई महीनों से, पिछले 1-1.5 साल से आईबी का सेक्टर जो है काफ़ी गर्म रहा, कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए को, तो कहा जा रहा है कि एक आईबी से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो आते आते किश्तवाड़ आ गया, किश्तवाड़ से वो अनंतनाग इस रिज पे पहुंचा। और अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि जो गडोल का ऑपरेशन हुआ था 2023 में, जिसमें आर्मी के 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का डीएसपी की हत्या हुई थी, और उसके बाद जो है कि इस पूरे रिज में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, क्योंकि कई जगह पर जो देखा गया कि ऑपरेशंस लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वो रीज़न यही है कि ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए, या जो पार्टीज़ थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का, साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी आया बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने इस बार चूज़ किया है ये बिल्कुल अलग थलग स्पॉट है, जो पहलगाम मेन टाउन से बहुत दूर है। एक ट्रैकर्स का ट्रैक है जिसको अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, मडी है, और जिसमें कई जगह पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं, तो आसान रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचना। लोग घोड़ों पे आते हैं या पैदल आते, मोटराइज रोड नहीं है कि आप गाड़ी में चल दिए और यहाँ पहुँचे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो कम से कम 5 घंटे का जो है ट्रैक है, जहां अगर आपको यहाँ 22 सरन के इन मीडोज़ में आना है। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया, एक रेकी प्रॉपरली हुई है कि अगर इस तरह का अटैक होता है तो इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहां डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है, और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गवा गए। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, बल्कि जितना इंटेलिजेंस आप इतना इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट यहाँ किस तरह से पहुँचे, कौन सा रास्ता लिया गया, कितना लोकल सपोर्ट मिला, क्या कोई आइटनरी लीक हुई थी, क्या किसी की आइडेंटिटी लीक हुई थी, कहाँ कितना एक्यूरेसी था इस अटैक में, और साथ साथ जो गेट को इन्होंने बंद किया ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर का अंदर ना आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग थे, 4 काली यूनिफॉर्म में थे, 4 लोग आर्मी के फटीग में थे। ये एक एक्सरसाइज है जो लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई शायद आर्मी के कमांडो है या आर्मी के लोग हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाद में जब पता चला तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई बच्चों और लड़कियों को, औरतों को अलग करके। लेकिन टारगेट जो रहा था वो मेल जो मेल थे उनके ऊपर टारगेट हुआ, कुछ लोगों पे सर के ऊपर गोली लगी, जिससे क्लियर है कि इंडिकेशंस और उनका मोटिव खाली यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो। जिनकी डेथ हुई है मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिट ऑन हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा है, और जो इंजर्ड है उनको या तो एब्डोमेन में लगी है, या तो थाई में लगी है, या तो आर्म में लगी है, कुछ लोगों को ब्रूसिस लगे हैं, कुछ लोग जो यहाँ से भागे हैं दलदल में कुछ लोग फंसे थे, क्योंकि कई लोगों के जूते हमने देखे, कई लोगों के सॉक्स हमने देखे, बैग गिरे हुए हैं, तो दैट मीन्स दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ। और उस सारे चीज़ में कई लोगों की जो है एक्सटर्नल इंजरीज भी हुई है जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है, जिनकी डेथ हुई है उनके किथन किन्स को 10 लाख, जिनकी इंजरीज है उनको 2 लाख, और जो कम छोटी इंजरीज में भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जहां कश्मीर एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चल रहा है, वहीं अचानक जो है उस पीस में एक खलबली मच गई।